بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 کاموں کا خاص حکم دیا. 4 چیزوں کا فرمایا رمضان شریف میں, اور چاروں آسان ہیں. اللہ کے رسول صحابہ کو ترغیب دیتے تھے 4 چیزوں کی رمضان شریف, چاروں آسان. نمبر 1, رمضان شریف میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو کثرت سے. کلمہ شریف کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ, پڑھیں میرے ساتھ, پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سب مل کر ایک ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ شریف پڑھیں کثرت سے. نمبر 2, استغفار کی کثرت کریں. اگر نہیں کوئی بڑا استغفار یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. یہ حضور علیہ السلام نے بتایا خاص عمل رمضان شریف کا. 2 چیزیں ہو گئی کتنی؟ ایک کلمہ شریف اور ایک استغفار شریف. اور پھر 2 چیزیں فرمایا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگو. جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو اور اللہ سے جنت کا سوال کرو. اور جب بھی جنت مانگا کرو, یہ دوسری روایت ہے, جب بھی جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا. اور اس کے ایک اور بات اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں, بلکہ آپ سے کہہ دوں جب وہ دینے ہی والا ہے اور اس نے دینا ہی ہے تو پھر بڑی چیز مانگے, جنت مانگے اور جنت میں بھی رسول اللہ کا پڑوس مانگے. اے اللہ تیرے محبوب کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرما, تیرے محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرما. اس لیے کہ مانگنا ہمارا کام ہے, پھر عطا تو اس کے کرم پر ہے. اور اس کے یہاں کمی کس چیز کی ہے؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھا تو گڑیا نے کہا کہ میں بتا دوں گی لیکن شرط ہے, اس کو پتہ بتانے کے عوض میں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی جنت مان لے, اتنا تیرے لیے کافی ہے, میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے اے موسیٰ اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو, اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو. اندازہ فرمائے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے ان کے پڑوس میں جنت مانگا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اگر ہم بھی محبوب کے پڑوس میں جنت مانگے کوئی بعید نہیں ہے, انشاءاللہ ضرور عطا کیے جائیں گے. اور میرے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو 4 چیزیں کلمہ شریف کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو, اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو اور جنت کا سوال کرو. سب مانگو, روزی بھی مانگو, بچے بھی مانگو, پوتے نوازے سب مانگو, گھر بھی مانگو, فیکٹریاں بھی مانگو, سب مانگو. لیکن یہ 2 چیزوں کو ضرور مانگنا, ایک تو جہنم سے بچنے کی دعا اور ایک تو جنت طلب کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں محبوب کے پڑوس میں جنت طلب کرے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم اتنے دنیا میں ڈوب گئے کہ روزے کی حالت میں بھی ہم صرف مال ہی مانگتے ہیں, ہم صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. اللہ کے بندو دنیا مانگو مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو, آخرت کا بھی کچھ بھلا طلب کر لو, آخرت بھی چاہو. اس لیے کہ اللہ جس کو جہنم سے پناہ کر دے پھر انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا, اور اللہ جسے جنت کا مشتاق کر دے پھر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. بہت برکت والا مہینہ ہے, اس کا جس نے احترام کیا, جس نے تعظیم کی, جس نے اکرام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرماتا ہے. اور جو اس کی تعظیم نہ کرے, اکرام نہ کرے, ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان شریف میں انتقال کرتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, فتنہ قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو ماہ رمضان شریف میں موت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے اگر مال دیا ہے
तो कोशिश करो जिंदगी में एक मर्तबा कोई रमजान शरीफ हरमैन शरीफैन में गुजारने की कोशिश करो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो कुछ पैसा इकट्ठा करो, नियत करो और कोशिश कर लो कि जिंदगी का कम से कम एक हरम मोहतरम जो है अल्लाह एक रमजान शरीफ जो है हरम मोहतरम में गुजारे। क्यों? इसलिए कि अगर मक्के में रोजा रखोगे सुभान अल्लाह वहां की एक लाख के बराबर, अगर मक्का शरीफ में रोजा रखा 1 लाख और रमजान शरीफ में फिर 70, इसका मतलब ये है अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मक्का शरीफ में एक रोजा रखना कुर्बान जाए 70 लाख रोजा रखने का सवाब के बराबर है। इसलिए अल्लाह अगर तौफीक दे तो नियत कर ले, ज़हन बना ले, अल्लाह अकबर। और फिर मदीने मुनव्वरा में माह रमजान शरीफ की बहारों का क्या कहना, अल्लाह अकबर। अगर जिंदगी का खूबसूरत माह रमजान कहीं नजर आया तो वो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में नजर आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह हर मुसलमान को मंजर दिखाए, क्या मजे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम सामने जलवागर है, दस्तरखान लगे होते हैं, कोई रो रहा है, कोई आग रुका कर रहा है, कोई तस्बीह और तहलील में मसरूफ है और अनवार की जो बारिश होती है उसका तो बयान ही नहीं है। जब आम दिनों में वहां का कोई बयान नहीं हो सकता तो माह रमजान शरीफ की बहारों का क्या। इसलिए अल्लाह अगर तौफीक दे तो अभी से ज़हन बना लो, वालिदैन हयात है तो कोशिश करो उनके साथ, अगर बाल बच्चे हैं तो नियत कर लो उनके साथ। इसलिए कि नियत करना अपना काम है और नियत की लाज रखना अल्लाह के कदम पर है। और अगर नियत कर ली सच्ची और अगर हाजिरी ना भी हुई तो कम से कम अल्लाह नियत का सवाब जरूर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए माह रमजान शरीफ का खास एहतमाम करें, सहरी का, सहरी में तहज्जुद का, इसी तरीके से। और फिर ये बात भी याद रखें, आका अलैहि सलाम फरमाते कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रोजे में भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे जिनको रोजे में भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं, वो भूखे प्यासे रहते, सिर्फ कुछ नहीं मिलता उनको। क्यों? आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते कि रोजा ढाल है, ढाल, और इस ढाल में सुराख करने वाली, डैमेज करने वाली जो चीज है वो झूठ है, झूठ। यानी जब रोजा रखो झूठ से बचो, रोजा रखो गीबत से बचो, रोजा रखो चुगली से बचो, रोजा रखो बदनिगाही से बचो, रोजा रखो झगड़े फसाद से बचो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा रखने के लिए, फरमाया सब रोजा रखो जब तक मैं ना कहूं कोई कुछ खाएगा पिएगा नहीं, कोई इफ्तार नहीं। ऐसे में एक सहाबा आए और उन्होंने बताया कि हमारे घर की औरतों ने भी रोजा रखा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उनको तलब किया और तलब करने के बाद मेरे आका ने उनसे फरमाया उल्टी करो। अगर माएं और बहनें भी सुन रही है तो उनकी भी तवज्जो चलो और आपकी। देखो दिन भर भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, बज़ाहिर कितनी छोटी गलती है लेकिन ये कितना बड़ा वबाल है। लोग तो इसको छोटी समझते, छोटी है नहीं। गीबत तो ज़िना से भी बढ़कर है ना, ज़िना से बुरी चीज है गीबत। तो वो दो औरतों से अल्लाह के रसूल ने उल्टी करो, उन्होंने उल्टी की तो उसमें गोश्त निकला। हालांकि उन्होंने गोश्त खाया नहीं था, उन्होंने गोश्त नहीं खाया था, लेकिन उल्टी करने पे गोश्त निकला। वो हैरान हो गए, इन्होंने कुछ खाया नहीं, गोश्त कैसे निकल रहा है। तो जब परेशान हुए तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया क्या तुम लोगों ने किसी की गीबत नहीं की? ये गीबत का असर है, क्योंकि जो गीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है गीबत करने वाला। अल्लाह अकबर। गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोया के गोश्त खाता है। लोग कहते हैं हजरत हम तो अंडे से बचते हैं, मछली से बचते हैं, गोश्त से बचते हैं। हमने कहा क्यों? कहा ताकि अमल में पावर पैदा हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोश्त, अंडा, मछली खाना उतना नुकसान नहीं है अमाल के लिए जितना गीबत करना नुकसान। अंडा खाने से तो बच गया, मरे हुए भाई का गोश्त खाने से कब बचेगा? अंडा खाने से तो बच गया, मुर्दा भाई का गोश्त खाने से कब बचेगा? दिन भर खाने पीने से फ्रिज भरी पड़ी हुई है, किचन भरा पड़ा हुआ है, अच्छी अच्छी सब्जियां नहीं खा रहे, फल नहीं खा रहा, और गीबत करके क्या खा रहा है? रोजे में मरे हुए भाई का गोश्त। आप अंदाजा फरमाए। तो अपने रोजों को जाया मत करो,
गीबत से बचो, चुगली से बचो, झगड़े से बचो, बदनिगाही से बचो, बुरा सुनने से बचो। इसलिए कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोजा जबान का भी होता है, रोजा आंख का भी होता है, रोजा कान का भी होता है। और क्या कान का रोजा ये कि कोई बुराई ना सुनो, आंख का रोजा ये कि कोई बुराई ना देखो, जबान का रोजा ये कि जबान से कोई बुरे जुमले ना कहो। अच्छा, कुछ लोग इतने पासा है बेचारे कि सारी गीबत करने के बाद क्या कहते बताए, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, मैं गीबत की नियत से नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं। वाह, आपके नाम बदलने से बात बदल जाएगी। अरे गीबत तो वही है जिसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गीबत फरमा दिया। और लोग क्या कहते हैं, अरे भाई उसमें वो आया है तो हम बयान कर रहे हैं ना, ये कोई गीबत थोड़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे ऐब है वो बयान करना ही तो गीबत है। अगर वो ऐब ना हो तो बयान करो तो फिर गीबत नहीं बल्कि तौबा है। किसी मोमिन के पीठ पीछे उसकी ऐसी बात बयान करना कि अगर वो मौजूद रहे तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचे। बल्कि बुजुर्गों ने तो यहां तक लिखा कि अगर ये कह दिया ना कि उसकी आंख तो छोटी थी, ये भी गीबत है, उसकी आंखें तो लंबी थी, ये भी गीबत है। बहुत देर होशियार समझता अपने आप को, ये भी गीबत है। उसके मुंह से तो बदबू आती है, ये भी गीबत है। उसको तो कुछ आता जाता ही नहीं, ये भी गीबत है। इसलिए गीबत करके अपने अमाल को जाये न किया करो, और खास तौर पर अपने रोजों को बर्बाद न करो, जबान पे कंट्रोल करो। बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगा, रोजा रखो, जाग रहे हो, तिलावत करो। लोगों का ये भी हाल है कि उन्हें कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते। बुजुर्गों ने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान शरीफ पढ़ना नहीं सीखा होगा, क़यामत के दिन उठेगा तो अंधा उठेगा। मरने से पहले पहले कुरान शरीफ सीख लो। बल्कि मैं लोगों को मशवरा देता हूं, एक अच्छे हाफिज जी के पास सिर्फ महीना भर चले जाओगे, 3, 4, 5 पारे अगर वो आपको सही पढ़ा देंगे, दूसरे तमाम पारे आप खुद ही पढ़ने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लो। इसलिए कि 4-5 पारे अगर अच्छे से पढ़ लो तो पूरा कुरान खुद ही पढ़ने के काबिल हो जाओ। कुरान पढ़ने का उसूल जान लो, कुरान पढ़ने का तरीका जान लो। जैसे आप हर किताब पढ़ने थोड़ी सीखने जाते हैं, आपने उर्दू पढ़ने का कायदा सीख लिया, इंग्लिश पढ़ने का कायदा सीख लिया, हर चीज पढ़ रहे हैं। इसी तरह कुरान पढ़ने के कवायद सीख लीजिए, आप बिल्कुल कुरान मुकम्मल पढ़ने लग जाएंगे। रमजान शरीफ के महीने का इसका भी फायदा उठा लो। रोजाना किसी अच्छे हाफिज जी के पास 1 घंटे का वक्त निकाल करके दो और 4-5 पारे अच्छे से पढ़ना सीख लो। देखिए, वक्त निकालने पर आ होगा। हमने कंप्यूटर सीखा, हमने मोबाइल सीखा, हमने कारोबार सीखा, हमने तिजारत सीखा, बहुत कुछ सीखा। कुरान पढ़ना भी सीख लीजिए। कुरान की बरकतें हैं, अल्लाह का कलाम है, उसकी बरकतें हैं और बहुत बरकतें हैं। बल्कि सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फतावा रज़िया शरीफ में एक रिवायत लिखते हैं, फरमाते हैं कुरान की अजमत और हुर्मत की वजह से हर फरिश्ते को भी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। तवज्जो करें और फरमाए कुरान क्या चीज है। हर फरिश्ते को भी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मोमिनों, ये हुजूर के उम्मती होने का सदका है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने का हुक्म दे। गुनहगारों को हुक्म कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अब जब फरिश्तों को, हर फरिश्ते को कुरान की तिलावत की इजाजत नहीं, तो फिर फरिश्ते करते क्या है? फरिश्ते करते मौला जब हमें तूने कुरान पढ़ने की, जिनको इजाजत नहीं है वो क्या कहते हैं? मौला हमें कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो हम कुरान की लज्जत कैसे हासिल करें? तो अल्लाह फरमाते हैं जाओ, मेरे जो बंदे कुरान की तिलावत कर रहे हैं उनके मुंह पर अपना मुंह रख दो और कुरान की लज्जत को हासिल करो। अंदाजा करें, ये कुरान है, फरिश्ते लज्जत कुरान की हासिल करने के लिए कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वालों के मुंह पर मुंह रखने के लिए आते हैं। फरिश्तों का नुक्ता है, इसलिए कुरान की तिलावत करो। नहीं कुरान पढ़ना आता, कलेमा शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, हाथ में तस्बीह रख लो। किसी से शर्माने की जरूरत नहीं, हाथ में तस्बीह रख लो। बटन वाली तस्बीह तो आसान है, छुपी हुई रहती है। और किसी से यार गुनाह करने में शर्माने की बात है, नेकी करने में कोई थोड़ी शर्माना। कुछ लोग समझते हैं हाथ में तस्बीह रखना रियाकारी है। रियाकारी हाथ में तस्बीह रखना नहीं है। हाथ में तस्बीह का ताल्लुक रियाकारी से नहीं है, रियाकारी का ताल्लुक दिल से।
अगर आप दिल में ये सोचते हैं माज़अल्लाह कि लोग मुझे तस्बीह पढ़ता देख करके बड़ा मुत्तकी पासा समझे, तो ये रियाकारी। और अगर आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लोगों से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं, बल्कि ये भी नियत है कि चलो लोग देखेंगे तो 4 लोग मुझे देख के भी तस्बीह पढ़ेंगे, तो बल्कि अल्लाह उसका सवाब तुम्हें और अता फरमाएगा। क्योंकि जितनों ने आपको देखकर हाथ में तस्बीह ले ली, उनको तो सवाब मिलेगा, उनके सवाब में कमी की है, मगर अल्लाह आपको भी सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अगर आप हाथ में तस्बीह, बातचीत से परहेज करो, कम से कम गुफ्तगू करो, रोजे में जितनी कम गुफ्तगू करो उतना अच्छा है। लेकिन इतना याद रखना, ऐसा नहीं कि बात ही बंद कर दो, हमारे यहाँ चुप का रोजा नहीं है। बक़द्र ज़रूरत बात करो, फजूल बात से बचो, टीवी देखने से बचो। बल्कि एक बात यहाँ और भी अर्ज कर दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, रोजे में इतने नेक हो जाते हैं कि वो टीवी चैनलों पर ही मसरूफ हो जाते हैं। और पड़ोस के मुल्क में से ये वबा आ गई है, रमजान शरीफ के प्रोग्राम के नाम पर अब तो एंकर और लड़कियां मेकअप करके बैठती हैं बिल्कुल इफ्तार के करीब, और उनके साथ लोग भी बात करके बैठ जाते हैं। फिर सवाल और जवाब होते हैं, ये होता है वो होता है, सीखना। कितने मुकद्दस वक्त में आप एक मेकअप करके आने वाली लड़की के साथ हालत रोजा में टीवी का मुंह पकड़ कर बैठे, सोचिए सही। और लोग उसको भी इबादत समझते हैं, उसको भी इबादत समझते। याद रखिए कि उलमा के बयानात जरूर सुनिए, उसका एक वक्त हो। लोग बिल्कुल इबादत के दुआ के टाइम में, इस्तिग़फ़ार के टाइम में टीवी लगाकर बैठ जाते, तो ऐसा मत कीजिए। खास तौर पर इफ्तार के वक्त में अपने बच्चों को, बीवी को, सबको साथ में लेकर के बैठो, और हो सके तो घर का कोई फर्द दुआ करे और उसकी दुआ पर सब लोग आमीन कहें। अब आप सोचेंगे मुझे तो दुआ करना नहीं आती, फिर आप अकेले में क्या करते? अल्लाह के यहाँ अल्फाज के उतार चढ़ाव नहीं देखे जाते, अल्लाह के यहाँ उर्दू अदब के मामला चेक नहीं किए जाते, यहाँ तो दिल का मामला। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारे माल देखता है, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। दिल की आवाज जो निकलती है वो कबूल करता है। अपनी ज़बान में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाइए, दुआ कीजिए और अपने लिए मांगिए, तमाम मोमिनीन के लिए मांगिए। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, किसी मोमिन के पीठ के पीछे दुआ करना ऐसा है जैसे अरफात में हाजी की दुआ का मकाम है, वैसे ही मुसलमानों के पीठ के पीछे उनके लिए दुआ करने का मकाम है। और हज़रत उम्मे दर्दा रिवायत करती है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जब किसी मोमिन के पीठ पीछे तुम दुआ करते हो तो अल्लाह एक फरिश्ता तुम पे मुकर्रर कर देता है, और वो फरिश्ता यूं अर्ज करता है, मौला ये अपने मोमिन भाई के लिए जो मांग रहा है ये नेमत तो इसको अता फरमा। यानी तुम अपने मुसलमान के लिए दुआ करते हो, उस वक्त फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए अल्लाह के बंदों को खास तौर पर इफ्तार के वक्त दुआ, सहरी के वक्त दुआ, और दुआ में गिड़गिड़ाओ, रोने की कोशिश करो, आंसू निकालने की कोशिश करो। और अगर आंसू नहीं आते, रोना नहीं आता, तो कम से कम रोने जैसी शक्ल बना लो, रोने जैसी सूरत बना लो। इसलिए कि अच्छों की अदायगी अच्छी होती है। दुआ करने के आदाब ये है, अव्वल दुरूद शरीफ पढ़े, आखिर दुरूद शरीफ पढ़े और बीच में दुआ करें। इसलिए कि इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि बगैर दुरूद की दुआ ऐसे ही है जैसे बगैर पर का परिंदा। बगैर पर का परिंदा क्या उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। इसी तरह बगैर दुरूद की दुआ का भी यही हाल है। तो इसलिए अव्वल दुरूद पढ़ो, आखिर दुरूद पढ़ो। दुआ दुरूद कभी मरदूद नहीं होगा, दुरूद हमेशा कबूल होता है। तो अव्वल का दुरूद भी कबूल होगा, आखिर का दुरूद भी कबूल होगा, तो इंशाअल्लाह बीच की दुआ भी कबूल होगी। और दुआ के अंदर ये आयत जरूर पढ़ा करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने ये दुआ कर ली उसने सब कुछ मांग लिया और अल्लाह उसको सब कुछ अता कर देता है। एक हदीस ये भी है, जो ये आयत करता है अल्लाह उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। ये आयत भी याद कर ले, उसी के साथ साथ सूरह फातिहा याद कर ले। पूरी सूरह फातिहा, हमद की सूरत याद है, उसको भी दुआ की नियत से पढ़े। हदीस पाक में आता है, जिसको दुआ करने के लिए वक्त नहीं मिलता, वो जिस नियत से सूरह फातिहा पढ़ेगा अल्लाह उसको मांगने से सिवा फरमाएगा। इसलिए हमारे अक्सर अहले सुन्नत में कहते हैं ना, अल फातिहा जब कहते हैं तो उस वक्त भी लोग कहते हैं अल्लाह ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। हालांकि पहले जब अल फातिहा कहा जाए तो तरीका ये है कि आप पहले सूरतुल फातिहा पढ़ें,
दुआ की नियत सूरतुल फातिहा पढ़े। बल्कि हुजूर सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि बंदा अगर इस तरह सूरह फातिहा पढ़े, बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्द की लाम में मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर करे अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम, 3 बार इसकी तकरार करे। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर पूरी सूरत पढ़े और गैरिल मग़दूबि अलैहिम पर जब आखिर में पहुंचे तो फिर कहे वलद्दालिन पर पहुंचने के बाद कहे आमीन 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 3 बार। सिलसिले चिश्तिया में इस तरह सूरह फातिहा पढ़ना सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं जिस नियत से पढ़ोगे तुम्हारे दिल में जो नियत होगी अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देगा।